चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग लेट ही आ रहे लग रहा है। ये सब कुछ आई होप सबको क्लियर है। नंबर लाइन होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे हम लोग हर रियल नंबर को स्पॉट कर सकते हैं। वी कैन स्पॉट एनी रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। वी कैन स्पॉट ऑल द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। कैन वी आल्सो स्पॉट रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 आल्सो? Yes, sir. मतलब इनफैक्ट वी कैन स्पॉट ऑल द रैशनल नंबर्स, ऑल द रैशनल नंबर्स जैसे भी होगा ऑन द नंबर लाइन वी कैन स्पॉट ऑल ऑफ देम। अच्छा, नॉट ओनली दैट, दिस वाज आल्सो स्टडीड लास्ट टाइम। क्लोज्ड इंटरवल और एक ओपन इंटरवल, डू यू रिमेंबर? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में डिफरेंस क्या है? Sir, in the first closed interval, both A and B are included. That is correct. And in the open interval, both A and B are excluded. And this is the terminology to write it. Does anybody have doubt here in this? Today, in today's lecture, we are going to do this much only. मतलब इसको थोड़ा और amplify करेंगे highly. अच्छा, other than this, we have practiced few things. For example, x greater than 10. इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखूं? x greater than 10 को Sir, x belongs to round bracket 10, comma infinity round bracket. थैंक यू, थैंक यू। बस मैं थोड़ा सा वार्म अप कर रहा हूँ। यस, थैंक यू अकमल एंड कीर्ति। दिस इज द वे। एंड x लेस देन 10 होगा तो Minus infinity, comma 10 round brackets. थैंक यू भाविका। और बाकी लोग सब क्या नींद में हो क्या अभी भी, कि याद है? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग, यस अनिरुद्ध यू आर आल्सो राइट। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग बाकी सबको भी याद आ रहा है। ठीक है, कुछ ये याद नहीं होगा तो फिर आगे कुछ नहीं समझेगा। अभी पूछो कुछ डाउट होगा तो। ओके, नाउ do you understand simple English words which are used commonly in mathematics? A and D end, और दूसरा नाम और। end मतलब like if there is something and something, so that means both of them should happen simultaneously. end मतलब both of them should happen simultaneously. और मतलब if any one of them happens that will also do. मतलब are you aware of these words nicely? इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स में पुट करने वाले हैं। नाउ आई वांट यू टू पुट राइट दिस। हमने लास्ट क्लास किया था बट स्टिल वापस से एक और बार करेंगे। x is greater than or equals to 3 and x is less than 5. I want you to write it in the form of an interval. How should I write it in the form of an interval? Can anybody think and tell me? Closed bracket 3 and open bracket 5. That is correct. Does anybody have a doubt here? Wait a second. Why is this Zoom blinking? Okay. Now x is more than or equals to 3 मतलब x is every number which is more than or equals to 3. तो 3 के right hand side every number, this is every number which is x is more than or equals to 3. और x is less than 5, less than 5 मतलब एक और नंबर लाइन लिया मैंने, x is less than 5 मतलब 5 से कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, तो everything which is less than 5. Now we want end है बीच में, तो we want both of them to satisfy, we want both of them to satisfy. तो मतलब हमें ऐसा x ढूंढना है जो 3 से ज्यादा हो एज वेल एज 5 से कम हो, 3 से ज्यादा हो एज वेल एज 5 से कम हो। तो बेसिकली इन दोनों का कॉमन रीजन, इन दोनों का कॉमन रीजन, इन दोनों के कॉमन रीजन को इनफैक्ट वी कैन आल्सो कॉल इट एज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, आर यू अवेयर ऑफ दिस वर्ड इंटरसेक्शन इन मैथमेटिक्स? Yes, sir. सेट्स में करते कॉमनली, दो सेट्स, ए यूनियन भी होता है और एक ए इंटरसेक्शन भी होता है। सबने पढ़ा है ना स्कूल में? Yes, sir. ठीक है, ओके ना। तो इसका आंसर हो जाएगा x is more than 3 as well as less than 5. तो what you are saying is right, x belongs to 3, 5. So this is the answer. Okay, I hope this is clear. किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अभी पूछो यार। I am going on assuming that you guys are understanding. If anybody is not understanding, either text me or just raise your hand or something. I'll just wait for you and discuss it.
Okay, I'll write down the next interval. I want you guys to write down the answer. ठीक है? I want you guys to write down the interval. In fact, now next one. Erase, ये erase कर रहा हूँ. किसी को लिखना है क्या? Okay. Next one. X is greater than or equals to 5 and x is less than 3. ये करना है. X is greater than or equals to 5 and x is less than 3. That is correct, Kirti and Freya. That is right, Advait. जल्दी करना पड़ेगा बाकी लोगों को, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. x is more than or equals to 5 मतलब समझो x का वैल्यू 5 से ज्यादा है, x का वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो every number more than 5 has to be counted. And the other one is x is less than 3. X is less than 3. So understand that number line पे 3 and 5 are already been placed. That is correct. Anirudh and Heth. Advait also. Tushar, can you speak up if it is possible? That's right, Rhythm. तुषार है क्या यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, तुषार, can you explain it to me कैसे करना है? So if x is greater than equal to 5, so 5, 6, 7, 8 till infinity, and Yes, yes. x is I'll just correct you a little bit. X is not necessarily in natural number only. X greater than or equals to 5 मतलब 5, 6, 7, 8 ही नहीं, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 वो भी आएंगे. ठीक है? yes, sir. ओके, ये हो गया x is greater than or equals to 5. दूसरा क्या है? X is less than 3. So 3 मतलब 3 से कम होना चाहिए. 3 से कम होना चाहिए मतलब कैसे नंबर्स? 3, 2.9, 2.8, 2, वेरी 2. गुड. 3 तो 5 से छोटा रहेगा, तो 3 से कम 2.9 ये सब आएंगे. अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुझे? 4. 4 कैसे कॉमन है? 4 कैसे कॉमन है? 4 के 5 से ज्यादा है क्या? नहीं है ना कॉमन 4. 5 कॉमन है क्या? ये देख, इन दोनों लाइंस को मर्ज कर देगा तो ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन, डू यू थिंक दे विल ओवरलैप? दैट्स राइट हिरेश. It is not possible. Are you understanding this, Tushar? Yes, sir. इसका और इसका कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं. So there is no intersection. In fact, we can say that there is no intersection. If there is no intersection, we can write that answer as just this symbol, which Null. means null set. Yes. So the answer is null set. देखो जाहिर सी बात है, x का वैल्यू 5 से ज्यादा होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए. ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता दुनिया में जो 5 से ज्यादा हो और 3 से कम हो. समझा क्या? Yes. ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं. बेसिकली एंड में कॉमन चीज आएगा, दोनों का लास्ट क्वेश्चन जैसा है, तो दोनों चीज में कॉमन, लाइक दोनों शेडेड रीजन्स में कुछ ओवरलैप हो रहा है तो वो इंटरसेक्शन, वो आंसर लिख देंगे. अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है तो विल राइट डाउन दैट द आंसर इज नल सेट. आई होप दिस मच इज क्लियर विद एवरीबॉडी. ओके, राइट डाउन, विल राइट डाउन द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये एरेज कर रहा हूं. आई होप किसी और को डाउट नहीं है. अंश, नल सेट को ऐसे लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट्स में सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट लिखना पड़ेगा. एम्प्टी ब्रैकेट लिखना पड़ेगा. यू शुड नॉट राइट जीरो इनसाइड द ब्रैकेट. जीरो लिख दोगे तो दैट मींस दैट जीरो हैज बीन काउंटेड, द नंबर जीरो हैज बीन काउंटेड. सो दैट्स व्हाई यू शुड जस्ट राइट एम्प्टी ब्रैकेट्स. अंश, द वे. Okay, sir. ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर x is greater than or equals to 4 and x is less than or equals to 4. That's right, Akmal. Kirti, you're right. जन्मजय, हेत, अनिरुद्ध, जन्मजय एंड हेत आर करेक्ट. अनिरुद्ध थोड़ा सा ब्रैकेट्स लिखना पड़ेगा.
Archit is right. Freya, brackets are wrong. Advait, brackets are wrong. Het Satra also, brackets are wrong. Now your intention is right. Intention is right. Whichever whom I said brackets are wrong. And the way also brackets are wrong. See, most of them are making it the right approach. देखो x is more than or equals to 4 मतलब 4 या तो 4 से ज्यादा, everything जो भी 4 या 4 से ज्यादा है, everything on the right side of 4. x is less than or equals to 4 मतलब everything on the left side of 4, everything on the left side of 4, everything on the left side of 4. दोनों में दोनों का कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? दोनों का कॉमन क्या आएगा? कैन एनीबॉडी टेल? 4. भाविका, यस, दोनों का कॉमन जो है एग्जैक्टली 4 आएगा, एग्जैक्टली 4 आएगा. सिर्फ 4 आएगा कि 4 के अलावा कुछ और आएगा? सिर्फ एक ही नंबर 4 आएगा. सिर्फ एक ही नंबर लिखना हो तो वी आर सपोज टू राइट दिस ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स. सो द आंसर इज x बिलोंग्स टू 4 एंड 4 इज इनसाइड दिस कर्व्ड ब्रैकेट. जब हम लोगों को फाइनाइट नंबर्स, फाइनाइट मतलब सम लिमिटेड नंबर्स लिखेंगे तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट जो है दो नंबर्स के बीच की a, b रहेगा तो ये वाले ब्रैकेट्स यूज करेंगे. यहाँ पे बस ये कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे. सो द आंसर इज ओनली 4. दैट इज राइट, ओनली 4. उसको सिंबॉलिकली इस तरीके से लिखेंगे, ओनली 4 को कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे. वन शुड नॉट राइट इट लाइक दिस, इस तरीके से नहीं लिखना है. दैट इज नॉट मैथमेटिकली, ऐसे नहीं लिखते. दैट इज द ओनली थिंग. Just get accustomed to the symbols. Okay, I'm erasing this part also. किसी को ठीक है, किसी को डाउट होगा तो you can see the recording or whatever later. Yes, बोलो. Somebody was trying to talk. Okay. चलेगा guys. Next question. Okay. Now x is less than 3 or x is greater than 4. इसको एज एन इंटरवल लिखना है. x is less than 3 और x is greater than 4. Now the thing that you should understand is or मतलब you have to take union, you have to take union. दोनों का मतलब ये भी चलेगा वो भी चलेगा. नहीं कीर्ति, और मतलब दोनों. नो अनिरुद्ध, एक एक को अलग अलग से कर लेते हैं. सी x less than 3 is so easy to point out. X less than 3 is every number which is on the left side of 3. That is x less than 3. X greater than 4 is also a very simple equation. Every number which is to the right of 4. Every number which is to the right of 4. Okay. Now that is right. Bhavika, Akmal, very nicely done. No Anirudh, no Het. अच्छा, अभी देखो अनिरुद्ध या हेत, कैन यू टेल मी इन दोनों और है मतलब इन दोनों का हम लोग को यूनियन करना है. यूनियन मतलब देखो यार, जस्ट इट इज जस्ट सिंपल इंग्लिश वर्ड ओनली. यूनियन like union territories or like it is a union of countries or something. Union मतलब basically सबका collection. Union मतलब सबको जोड़ देंगे. That is a simple words union. तो अभी हम लोग को इन दोनों का कॉमन चीज नहीं निकालना है. ये भी काउंट होना चाहिए और ये भी काउंट होना चाहिए. मतलब दोनों शेडेड रीजन्स को एक साथ काउंट करो. एक साथ काउंट करो मतलब पहले शेडेड रीजन में क्या आएगा, तो ये भी काउंट करना चाहिए, ये भी काउंट करना चाहिए. तो आई हैव टू काउंट एवरीथिंग व्हिच इज लेस देन 3 एज वेल एज एवरीथिंग व्हिच इज मोर देन 4. आई एम सपोज टू काउंट बोथ ऑफ देम. दोनों को जोड़ के ऐसे लिख दिया. अभी ये है आंसर, ये है आंसर. नंबर लाइन पे तो दिख रहा है कि व्हाट आर द आंसर रीजन. अच्छा, नाउ इसको कामली लिखते हैं. नाउ फर्स्ट शेडेड रीजन, इसको एज एन इंटरवल लिख सकते हो क्या? एज एन इंटरवल कहां से लेके कहां तक है? व्हाट इज द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट? Anybody, what is the leftmost point? Yes, minus infinity. minus infinity. So इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी कॉमा 3.
माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3, ये सब कुछ आ जाएगा। और इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे दूसरे वाले को? 4 comma infinity. 4 कॉमा इन्फिनिटी। इन दोनों का क्या करना है मुझे? यूनियन करना है। यूनियन को मैथमेटिकली एक सिंबल है कैपिटल यू। हैव यू स्टडीड दैट इन स्कूल? यूनियन मतलब यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द आंसर इज माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3 यूनियन 4 कॉमा इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3 यूनियन 4 कॉमा इन्फिनिटी। यस भाविका, बट स्क्वायर ब्रैकेट 3 रहेगा उधर, ध्यान देना। What Bhavika is saying, can we write this answer as every number from minus infinity to infinity, और क्या चीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे? every number from minus infinity to infinity, और उसमें से क्या चीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे? What should I subtract from minus infinity comma 3 infinity? to 4. 3 to 4. So one can also write the answer as minus infinity comma infinity every number, and subtraction, minus sign, subtraction क्या करना है? 3 to 4. We should subtract every number between 3 to 4 to get our desired answer. One can also write it like this. And minus infinity comma infinity को थोड़े बुक्स में इस तरीके से भी लिखते हैं, कैपिटल R. Of course, capital R is every real number from minus A. So the answer can be written as R minus 3 to 4 also. R minus 3 to 4 also. ओके, अच्छे से डाइजेस्ट करो इस चीज को। नया सिंबल है यूनियन। जब दोनों को भी काउंट करना है तो यूनियन लिख देंगे, दोनों में से कॉमन चीज काउंट करना है तो इंटरसेक्शन लिख देंगे। इंटरसेक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हम लोग को विजुअलाइज करके दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट हम लोग करेंगे। ओके, किसी को डाउट है कि इस सब में? एनीबॉडी इन द क्लास? No, sir. ओके, थोड़ा आई एम सी एवरी क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एम्पलीफाई। किसी को डाउट होगा तो जरूर पूछो यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आई कांट सी योर फेसेस, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू कीप ऑन आस्किंग, डोंट गेट इरिटेटेड। ओके, नेक्स्ट वन, x less than 10 or x greater than 7। इसको एज एन इंटरवल लिखना है, x less than 10 और x greater than 7। इसको भी लिखो। लेट मी राइट डाउन सम से फर्स्ट क्वेश्चन। टू क्वेश्चंस, दोनों करो and then try to understand what is the difference between both of them. Okay. Now there are 4 questions on the board. I want you to solve all 4 of them and खुद से करना थोड़ा सा. I'll check your answers. I'll give you 5 minutes or less. Shuvayu, you are wrong. Archit, you are right, but it is just not the right way to write down the interval, but you are correct. Anirudh, you are correct. Kirti, no. अभी देखो, you have to focus on the most important word, OR, A and D. These two are the important words. Vaidehi, you are correct. It is just not the right way to write down. Archit, wrong. Yash, no. Freya, you are right. Once again, the interval is wrong. The way to write it is wrong. Anirudh, you are right. Okay.
ओके अद्वैत यू आर राइट टू एन एक्सटेंट। सी एक सेकंड, फर्स्ट वाला ना बहुत लोगों ने ना बहुत सही मतलब इनोसेंट तरीके से लिखा है। इट इज जस्ट दैट मैथ्स में ना वैसे लिखते नहीं है। अंश दिवे आल्सो सिमिलर तरीका से ही लिखा है। आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू इन मच मोर डिटेल। कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस सम? You just can anybody just point out fastly? पहला वाला x लेस देन 10 है, नो कीर्ति। पहला वाला x लेस देन 10 है मतलब एवरीथिंग विच इज लेस देन 10, ठीक है। और दूसरा है x ग्रेटर देन 7, वो भी सिंपल है, एवरीथिंग विच इज मोर देन 7, ठीक है। अब इन दोनों शेडेड, तो अभी अपना जो आंसर है क्या करूं, दोनों को मिला दूं या नहीं मिलाऊं? मतलब यूनियन है, OR यूनियन है, तो इन दोनों शेडेड रीजन्स को एक ही नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा? दोनों रीजन्स, दोनों को एक ही नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो क्या बनेगा? 7 to 10. No, are we taking the common part? Is that the way we should do? Akmal and Archit, now you are right. अर्चित मोदी थर्ड वाला तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, फोर्थ वाला करेक्ट है। यू शुड अंडरस्टैंड अर्चित की 7.1 7.2 वो सारे नंबर्स भी है। अच्छा अभी देखो यार, वन सेकेंड मैं बता रहा हूँ, यूनियन, इन दोनों का यूनियन मतलब मुझे ये नंबर्स भी काउंट करने हैं, ये शेडेड रीजन भी काउंट करना है और ये भी काउंट करना है। तो नंबर लाइन पे दोनों को मिला के बना दूं, दोनों को मिला के बना दूंगा तो नंबर लाइन पे क्या क्या चीज शेड करना पड़ेगा? नो रिदम यू आर राइट, बट इट इज जस्ट नॉट एक्यूरेट। तो दोनों को बना देना मतलब -∞ से 10 तक शेड करूंगा, फिर 7 से लेके 10 तक शेड करूंगा, फिर 7 से लेके 10 तक शेड करूंगा। तो eventually what am I shading? I am considering or shading every number from -∞ to infinity. So the answer is -∞ to infinity. The answer is -∞ to infinity. The answer is -∞ to infinity. मतलब it is like I need a child which is either less than 10 years or more than 7 years. I need a student which is either less than 10 years or more than 7 years. Don't you think I am choosing every possible student in the world? 10 साल से कम होना चाहिए या तो 7 साल से ज्यादा होना चाहिए, तो कोई भी हो सकता है। 10 साल से कम में 8 साल 9 साल 6 साल वाले सारे बच्चे आ जाएंगे, 7 साल से ज्यादा में भी 8 9 10 11 12 सब आ जाएंगे। बेसिकली आई एम चूजिंग एवरी पॉसिबल पर्सन। तो writing the answer as -∞, 10 union 7, infinity is not the right way to do, because दोनों overlap हो जा रहे हैं, तो तुम लोग ना थोड़े नंबर को बार बार काउंट कर रहे हैं। जैसे कि the number 8 is counted here also as well as here also. तो इन दोनों को अगर जोड़ सकते हो तो जोड़ दो, जोड़ के -∞, बोल सकते हैं। तो ये जिसने बताया उसका जस्ट सोफिस्टिकेटेड वर्जन है, -∞, विल बी द आंसर। फर्स्ट आंसर इज -∞, ओके। किसी को डाउट है तो पूछो यार अभी। नो अर्चित, बार बार बता रहा हूं, यू आर व्हाई आर यू नॉट काउंटिंग द नंबर 7.1 7.2 7.3? अच्छा, यू शुड जस्ट राइट 7 to 10, यू शुड नॉट, व्हाई आर यू इंक्लूडिंग 8 and 9? 8 and 9 पे क्यों दिमाग जा रहा है अर्चित मोदी? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन किसी को डाउट है क्या? जल्दी बताओ। नो सर। चलो एक का नो आया तो सबका नो मान रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग सारे क्लास में इतने कम इंटरेक्टिव हो क्या? ठीक है, चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वन, वैदेही, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. Sir, बताओ। x is less than 7, so everything that is less than 7 will be there. यस, And x is less than 10, so again like that only. हाँ, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? Sir, x is less than 10. No? हाँ, ये ग्रेटर है, sorry, ये ग्रेटर है। Okay, I didn't read the. वरना तेरा करेक्ट आंसर है। ओके, Okay. रिया सेकंड वाला बता सकती हो? Sir, I think I've made a mistake.
Yes, I hope you realized it. Yes, sir. 9 is nothing to do. 9 is useless. We can count 9.1, 9.2 also. That is the whole point. We are choosing all the numbers. That's right, Ansh Dive. That's right, yes. Siddharth, that is good. Can anybody else tell me the answer now for the second one? Good one, Kirti. सेकंड का आंसर बता सकता है क्या कोई? Anybody who can spell it out? Sir, minus infinity से 7 union 10 से infinity. That is it. Union 10 to infinity. That's it. If you are unable to merge them, union करके लिख दो बीच में. If you are able to merge them, merge कर दो. That's right, Freya. But fourth वाले का एक symbol है. I hope you know that. कीर्ति करेक्ट, जन्मजय करेक्ट. ओके, अभी थर्ड और फोर्थ भी करो खुद से. ओके, जल्दी करना. आई चेक, जस्ट चेक द आंसर्स. अनिरुद्ध थर्ड वाला, आई थिंक यू आर राइट. दैट्स राइट, फ्रेया. सिद्धार्थ हेत, यू आर राइट. थोड़ा जल्दी करो यार, मुझे बस वही वही नाम दिख रहे. आई एम अनेबल. व्हाई आर अदर नॉट टॉकिंग? अनुजा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Avanti, Moksha, can you explain me the third one? Sir, x is less than 10 and greater than 7. हाँ, तो कैसे? नंबर लाइन पे x लेस देन 10 हाँ. तो पता चल गया. x लेस देन 10 ये होगा. और And x greater than. हाँ, ग्रेटर देन 7 मतलब ये हुआ. Yeah, the mistake. तो दोनों का कॉमन पार्ट देख रहे कि नहीं देख रहे? 7 और 10 के बीच. हाँ, फिर तो आंसर गलत क्यों भेजा? सो थर्ड का आंसर क्या होगा? 7 और 10 के बीच में. 7 से 10, दैट इज द आंसर. सी जन्माजय, 7 से 10 बोलना चाहिए. व्हाई आर पीपल टेलिंग 7, 8, 9, 10? व्हाई आर यू नॉट टेलिंग 7, 7.1, 7.2? ऐसे करके 7, 7.001, 7.002 ऐसे करके कितने भी लिख सकते हैं. ये सब लिखने की जगह ही स्टाइल में 7, 10 इज द मोस्ट द एक्यूरेट वे टू राइट इट. डोंट, व्हाई आर यू गेटिंग 8 एंड 9 इन बिटवीन? तो तुम्हारा सोच जो है नेचुरल नंबर्स के बियॉन्ड करो. 7 का नेक्स्ट नंबर 8 नहीं है. 7 का नेक्स्ट नंबर हम लोग बता नहीं सकते. 7.0000001 है. मेनी मेनी इनफाइनाइटली मेनी zeros. Whoever is telling 8 and 9, you just have to understand it very nicely. तुषार, क्रिश, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? दुनिया में सिर्फ रियल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही नहीं है, इरेशनल नंबर्स और डेसिमल्स भी है. 7 से 10 मतलब 7 से 10 कितने नंबर होंगे? Infinite. इनफाइनाइट. 7 से 10 इनफाइनाइट नंबर से. 7 से 10 7, 8, 9, 10 ही नहीं है. इज दैट क्लियर, तुषार एंड क्रिश? Yes, sir. Okay. Next, last one. X is less than 7 and X is more than 10. मतलब X का वैल्यू 7 से कम भी होना चाहिए as well as 10 से ज्यादा भी होना चाहिए. दोनों भी होना चाहिए. Is it possible? It's not possible. That's right. Many of you have sent me. Kiresh, Ansh, Rhythm, Ryan.
So the answer is null set. Null set. Okay. Should I give more questions on this or is it clear? Okay, guys, I'm assuming it is clear. I'm going to a advanced version of this. किसी को डाउट होगा तो अभी पूछ लो. इंटरसेक्शन और यूनियन में क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द आइडिया. इंटरसेक्शन मतलब एंड आएगा तो इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज एंड आएगा तो इंटरसेक्शन लेंगे या कॉमन चीज लेंगे, whichever इज कॉमन. और आएगा तो यूनियन लेंगे, और आएगा तो यूनियन लेंगे. दैट इज द बेसिक आइडिया. ओके, आई एम गोइंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को अभी तक इन सम्स में डाउट होगा तो अभी पूछ लो. द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई. ओके, नाउ find x such that, okay, now I want you guys to think and tell me the answer. जितना इंटरेक्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा. अब इसमें वेराइटी ऑफ आंसर्स आएंगे. आई एम इंटरेस्टेड इन विच वन इज राइट. फाइंड x such that x minus 1 multiplied with x minus 2. Find x such that x minus 1 multiplied with x minus 2, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन is greater than 0. Find x such that x minus 1 into x minus 2 is greater than 0. ऐसा x ढूंढना है सच दैट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाए. नो शिवायु. Very good, Akmal. Very, very nice. No Kirti, no Siddharth, no Yash, no Vaidehi. No Shubham. Okay. Let me check the answers. Nidhi, no. Hiresh, no. Kirti, no. Freya also no. Ran, no. Anirudh, no. Good answer, Bhavika, but अच्छा, you're writing more. ठीक है. ओके, सबसे पहले x का वैल्यू 100 हो सकता है क्या? कैन एनीबॉडी टेल मी, कैन x बी 100? नो क्रिश. भाविका, योर आंसर इज नॉट एक्यूरेट. ऑफ कोर्स आई थिंक यू आर राइटिंग. Yes, sir. Krish, no. See, x का वैल्यू कैन बी 100. That is right. Whoever has said, see, x can indeed be 100, because understand that 100 minus 1 into 100 minus 2 is indeed positive. 100 minus 1 into 100 minus 2 is indeed positive. अच्छा, can x be 10? Yes, sir.
Yes, Ridham. Akmal, you're right. See, x can be 10 also. X can be 10 also because 10 minus 1 into 10 minus 2 is also positive. अच्छा, now, अच्छा, और बताओ सोच के, x का वैल्यू और क्या हो सकता है? Can x be 3? Yes, sir. Yes, sir. 3 भी हो सकता है क्या? 3 minus 1 into 3 minus 2 भी पॉजिटिव है, तो दैट इज ऑल्सो राइट. अच्छा, 3, तो देखो 100 भी करेक्ट था, 10 भी आ सकता है आंसर में, 3 भी आ सकता है आंसर. अभी थोड़े लोगों ने 3 से चालू किया, वंस अगेन वियर्डली. कैन x be 2.1? Yes, sir. Yes, sir. x be 2.1? No, Bhavika, I forgot your answer, but yes, now it is right, Bhavika. Yes, x can be 2.1 also because 2.1 minus 1 is also positive, 2.1 minus 2 is also positive. So positive into positive is indeed positive. X can be 2.1 also. अच्छा, now थोड़ा सोच, बहुत लोगों ने अच्छा सा 2 comma infinity बताया, which is right. Okay, now थोड़ा सा और सोचो, can x be 1.5? Yes, sir. How? Can you explain? x को 1.5 पुट कर देंगे क्वेश्चन में तो सेटिस्फाई करेगा क्या? No, 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 sir. No, sir. क्यों नहीं करेगा? सर एक जगह पॉजिटिव रहेगा और दूसरी जगह नेगेटिव रहेगा. Yes, 1.5 minus 1 is positive and 1.5 minus 2 is negative. Positive into negative will become negative. So negative is more than 0 is absolutely wrong. So basically we are saying x can't be 1.5. X can't be 1.5. अच्छा, थोड़ा सा और दिमाग लगा के सोचते हैं. Can x be minus 100? Can Yes, x, sir. देखो x का वैल्यू minus 100 हो सकता है क्या? सोचो जरा, others also. Yes, sir. Yes, x sir. अगर minus 100 हो तो minus 100 minus 1 is negative, minus 100 minus 2 is also negative, but surprisingly negative into negative will become positive, so x can be minus 100 also. So तुम्हारे आंसर में minus 100 भी आना चाहिए आंसर में. तो तुम जिन लोगों ने भी आंसर 2 comma infinity बोला है, जरा एक और बार सोचो, आंसर में minus 100 नंबर भी आना चाहिए. Okay, think and try now once again. This is a hint. Shuayu, you are close but not accurate. Can x be 0? Can anybody tell me? Can x be 0? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, आंसर में 0 भी आना चाहिए. 0 minus 1 0 minus 2 का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव है, x का वैल्यू 0 भी आ सकता है. अभी सोचो जरा 2 मिनट. Shuayu, I said, Archit, you are right, accurate, right. रिदम देखना 0 भी आना चाहिए आंसर में, समझ, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिया रिदम. वेरी गुड, यश यू आर राइट. कीर्ति, यू आर राइट. सी, आई वांट एवरीबॉडी टू ब्रेनस्टॉर्म. थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ. नो जन्मा जाए, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी नहीं हो सकता बिकॉज वी जस्ट प्रूव दैट x कैनॉट बी 1.5. x कैनॉट बी 1.5. नो अनिरुद्ध, थोड़ा और सोच, 0 से ज्यादा वैल्यू ले कोई. Shivayu, Anirudh, both of you, can you think about 0.1? Anirudh and Shivayu, x can be 0.1 or not? Verify that first. No, Siddharth, same logic. Can you check if x can be 0.1, 0.5? Can it be 0.5 or not? अंश ऑलमोस्ट करेक्ट है, थोड़ा सा ब्रैकेट का गड़बड़ है. रिदम सेम लॉजिक. कैन x be 0.5? Anirudh, you are right now. That is right, Riya Patel. Very nicely done. मोक्ष, देखना 2 इंक्लूड नहीं होगा सबसे पहले, 2 पे क्लोज नहीं हो सकता.
ऑल्सो x का वैल्यू 0.5 हो सकता है कि नहीं, सोचो जरा। मोक्ष, श्रेया, तुषार, यू आर एक्यूरेटली राइट, वेरी नाइसली डन। जिनका हो गया थोड़ा 2-5 मिनट वेट करो यार। आई जस्ट वांट अदर्स आल्सो टू फिगर आउट विद बाय देमसेल्व्स। जन्माजय 0.5 का सोचो। शुभम, यू आर राइट, शुभम बारी। इट इज जस्ट दैट थोड़ा माइनस इन्फिनिटी पहले लिखते हैं, छोटा Okay, नंबर sir. पहले लिखते हैं हमेशा। रिदम ठाकुर, नाउ यू आर एक्यूरेटली राइट। सो इज सिद्धार्थ अरविंद। Is your name Siddharth or is your name Arvind? What is your surname out of these two? Sir, my father's name is Arvind. My name is Okay. Siddharth. So I'll call you Siddharth. Huh? Okay, sir. Understand? Others also. What I was saying is, can x be 0.5? Can anybody tell me, can x be 0.5 or not? Yes, sir. 0.5 minus 1 नेगेटिव है, 0.5 minus 2 भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो x कैन बी 0.5 ऑल्सो। जिसने भी आंसर -50, 0 भेजा है, सोचो जरा। ओके, नाउ अभी टाइम अप, आई एम गोइंग टू टेल द एक्सप्लेनेशन नाउ। सी नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, इन जो भी चीज है नाउ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए there is this method is called as method of intervals, or there is a commonly used nickname जो हम लोग ज्यादा commonly बुलाएंगे। this method is called as wavy curve, WAVY, wavy curve। तो because the curve is like a wave, ठीक है, wavy curve है now, or method of intervals, whatever be the name। now basically हम लोगों को इसको ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं वो तरीका बताने वाला हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। फर्स्ट क्वेश्चन है तो आई एम गोइंग टू गो सुपर स्लो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स विल गो वेरी फास्ट। नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज, फर्स्ट थिंग ऑलवेज व्हाट यू डू इज, नंबर लाइन प्लॉट करो। नंबर लाइन प्लॉट करो, जैसे कि इस क्वेश्चन में नंबर लाइन प्लॉट किया, तो नंबर लाइन ऑफ कोर्स माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रहेगा। ओके, सेकंड स्टेप इज टू मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब व्हाट यू डू इज, ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 करो। ईच फैक्टर को इक्वल टू 0, लाइक ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0 करना। ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पे पहला फैक्टर इक्वल टू 0 कब होगा, x इक्वल टू 1 पे। दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 2 पे। तो नंबर लाइन बनाया, फिर हम लोग दोनों फैक्टर्स को मार्क करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर 1 and 2 बिकॉज 1 and 2 के अराउंड क्वेश्चन घूम रहा है। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद सबसे राइट मोस्ट पॉइंट मतलब इनफाइनाइट है, राइट मोस्ट पॉइंट इज इनफाइनाइट। अभी इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट डालूंगा तो विल इट सेटिस्फाई द क्वेश्चन और नॉट, या फिर सिर्फ इतने पार्ट को देखो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इन्फिनिटी डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी माइनस 2, इट इज इंडीड पॉजिटिव। इन्फिनिटी पे पॉजिटिव आएगा वैल्यू। अच्छा, इन्फिनिटी से थोड़ा थोड़ा विल मूव ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर इन्फिनिटी का से धीरे धीरे आके कम होते जाएंगे, तो फाइनली विल एनकाउंटर सम नंबर 1 मिलियन, 100, फिर 10 ऐसे करके। इन सारे पॉइंट्स पे पॉजिटिव ही रहेगा क्या? हर पॉइंट पे पॉजिटिव ही रहेगा, लाइक 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1000, 100, 10। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कब तक पॉजिटिव रहेगा? बिफोर 2। व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग एट 2? 2 minus 2 becomes 0. यस, 2 के अगर क्रॉस कर लेंगे, 2 के क्रॉस कर लेंगे, लाइक 2.1 पे भी पॉजिटिव है पूरा एक्सप्रेशन, ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 की बात। 2 से आगे जाएंगे 1.9 पे क्या हो रहा है कि वन ऑफ द फैक्टर इज चेंजिंग इट्स साइन, वन ऑफ द फैक्टर इज चेंजिंग इट्स साइन। लाइक x माइनस 2 का वैल्यू जो है 2 से ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव है, 2 से कम होगा तो x माइनस 2 इज चेंजिंग इट्स साइन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया x माइनस 2।
तो मेकिंग द होल एक्सप्रेशन ऑल्सो नेगेटिव, x माइनस x से 2 जस्ट 2 से कम होगा तो लाइक 1.9 पे इसका वैल्यू नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव को बस x एक्सिस के नीचे लिख रहा हूँ, नंबर लाइन के नीचे, तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा कि इसके आगे। वन के पास और एक ट्विस्ट आएगा, वन के लेफ्ट साइड जाएंगे तो x माइनस वन भी अपना रूप चेंज कर लेगा, मतलब इन अदर वर्ड्स x माइनस वन भी पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। अभी दो नेगेटिव हो जाएंगे, x वन से कम होगा तो दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव हो जाएंगे, वन से कम जाएंगे तो दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव हो जाएंगे, मेकिंग द होल एक्सप्रेशन, ये प्लस और माइनस जो है फुल एक्सप्रेशन का साइन है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का साइन है। तो ये पूरा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू जो है वन के लेफ्ट साइड दोनों भी नेगेटिव हो जाएंगे, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बिकम पॉजिटिव। this is what is called as method of intervals. अच्छा, now the question is when is this expression x minus 1 into x minus 2, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब कब होगा, पॉजिटिव कब कब होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव कब कब होगा मतलब देखो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इस सब में पॉजिटिव रहेगा। फिर से पॉजिटिव कब रहेगा? 2 से infinity। इंफिनिटी, और उन दोनों के बीच में यूनियन पुट कर देंगे। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ दिस इज द आंसर। इसी चीज को थोड़ा सा प्लस और माइनस लिखने की जगह पीपल आर मोर कॉमनली गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक ए कर्व और ए ग्राफ। तो इसका कर्व जो है इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा। पॉजिटिव मतलब ये जो भी ग्राफ है नंबर लाइन के ऊपर रहेगा, जो ये हो गया नंबर लाइन के नीचे, फिर से ये हो गया पॉजिटिव। So this curve is called as wavy curve. This curve is called as wavy curve. Wavy curve tells us when is the curve positive and when is the curve negative. Positive मतलब नंबर लाइन के ऊपर कब कब है, 2 से इंफिनिटी में है या माइनस इन्फिनिटी से 1 में है। नेगेटिव कब है? बीच नीचे वाला पार्ट 1 से 2 में नेगेटिव है। ओके, तो पहले इसको लिख लो ना, फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट लिखो, फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ इसको, एक और 2-3 क्वेश्चंस करवा के। वेवी कर्व आज पूरा हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेवी कर्व। यूज कब करना है? जब भी सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 वाले क्वेश्चंस नहीं, हम लोग अभी इक्वेशन से लेके इनइक्वेशंस में मूव ऑन कर रहे हैं। इनइक्वालिटीज और इनइक्वालिटी जब भी आएगा तो वी आर गोइंग टू यूज वेवी कर्व। ये तो दिख नहीं रहा, सॉरी। वेवी कर्व इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी। Okay, are you done writing this? Uh, 8 बजे, is it too early for you guys or is it fine? Like, should we change the timings a little bit late? Fine. सुबह सुबह होगा तो अच्छा ही है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द डे इज फ्री। जिस दिन लेक्चर नहीं होता क्या करते हो उस दिन? लाइक बाकी का होमवर्क मिल रहा है क्या काफी? ओके, होमवर्क कर रहे हो, असाइनमेंट्स एंड होमवर्क। ओके, बेसिक मैथ्स में थोड़े दिन के बाद एकदम से बहुत सारा होमवर्क मिल जाएगा। थोड़े दिन तक ये बेसिक चीजें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चाहे तो मैं तुम लोगों को वेवी कर्व के ऊपर एक असाइनमेंट दे दूंगा, देखते हैं कितना लेवल तक कर पाओगे आज। इफ इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट देन आई विल गिव यू अ टफ असाइनमेंट। तो वेवी कर्व किसी को डाउट हो रहा है तो पूछो। बेसिकली फाइनल आंसर इज राइटिंग दिस इंटरवल। दिस इंटरवल इज अवर फाइनल आंसर। ये इंटरवल तक पहुंचना है। बीच में कर्व बनाओ या प्लस माइनस लिखो वो फर्क नहीं पड़ता अपने को, आंसर तक। और ये सब कुछ जो है रफ वर्क में होने वाला है।
सो स्टेप्स वगैरह, ग्राफ का ब्यूटी वगैरह पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. The climate has also become cold, so I thought it was difficult to get up in the morning. Done writing? Yes, Hiresh, but we can also write it as all real numbers except 1 comma 2 included. Except 1 comma 2 included. 1 और 2 भी हटाना पड़ेगा माइनस से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सारा नाम वगैरह हटा देते हैं. बेसिकली नंबर लाइन बनाना है, ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 करना है. अभी नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस जो है मैं सॉल्व कर लूंगा तुम लोगों के लिए. एक सेकंड, थोड़ा सा वो, हाँ. फाइंड एक्स सच दैट okay. Next questions are easy, so that is why I'm going to solve it. Just understand what am I going to do. अभी next one, x minus 1 into x minus 2 less than 0. सेम ही क्वेश्चन है एक्चुअली. वेवी कर्व हमेशा इतने पार्ट का बनाएंगे हम. x minus 1 into x minus 2 का ही वेवी कर्व बनाएंगे. वेवी कर्व बनाने के लिए एक नंबर लाइन बनाओ. पहले नंबर लाइन बनाएंगे, इसमें हम फैक्टर्स मार्क करो. वंस अगेन फैक्ट मतलब पॉइंट्स वो मार्क करेंगे जब ईच फैक्टर इज 0. ये पहला फैक्टर x minus 1. x minus 1 is 0 when x is equals to 1. And x minus 2 is 0 when x equals to 2. So we are going to mark x equal to 1 and x equal to 2. अच्छा, अभी वेवी कर्व हमेशा या तो ऊपर से स्टार्ट होगा या तो नीचे से स्टार्ट होगा. वेवी कर्व इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अप और डाउन. अप और डाउन कौन डिसाइड करने वाला है? इन्फिनिटी डिसाइड करने वाला है. इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करने पर पॉजिटिव आएगा तो ऊपर से स्टार्ट होगा. इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव आएगा तो नीचे से स्टार्ट होगा. इस क्वेश्चन में सिर्फ इतने पार्ट को देखो. इतने पार्ट में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव. इन्फिनिटी तो पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव आके बस इतना कॉन्फिडेंटली बस उसको जहां जहां पॉइंट आएगा उसको कट करते हुए चले जाओ. ये हो गया वेवी कर्व. ये हो गया वेवी कर्व. इसका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का वेवी कर्व बनेगा. वेवी कर्व बनने के बाद नेक्स्ट इज टू राइट डाउन द आंसर, रेस्पेक्टिव आंसर. अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हेन इज दिस कर्व लेस देन 0. व्हेन इज दिस कर्व लेस देन 0. ये कर्व लेस देन 0 मतलब कर्व जो है इस लाइन के नीचे कब रहेगा? कर्व जो इस लाइन के नीचे कब रहेगा? यहां से यहां तक ये वाला रीजन है वो इस लाइन के नीचे है. अभी आंसर इंटरवल इस लाइन के नीचे कब रहेगा मतलब आंसर क्या होगा? दैट्स राइट तुषार. इसका आंसर होगा 1,2. इसका आंसर होगा 1,2. x बिलोंग्स टू 1,2 इज द आंसर. ओके, एक और सम करता हूं, मे बी आइडिया आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, x plus 1 into x minus 3 greater than 0. तो कैन यू टेल मी फास्टली क्या करूं? एनीबॉडी? दैट्स इट. शिवायु, क्या क्या पॉइंट्स मार्क करूं? So -1 or 3. -1 और 3. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस. x plus 1 0 होगा, x equal to -1 पे x minus 3 0 होगा, तो वो पॉइंट्स मार्क करेंगे. ऊपर से स्टार्ट होगा कि नीचे से स्टार्ट होगा? ऊपर से. ऊपर से. हाँ, ऑफनली ऊपर से ही स्टार्ट होता है तो ऊपर से. बस ये हो गया कर्व. अच्छा, अभी क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हेन इज दिस कर्व ग्रेटर देन 0. व्हेन इज दिस कर्व ग्रेटर देन 0 मतलब इस लाइन के ऊपर कब है? इस लाइन के ऊपर कब रहेगा? तो ये वाला रीजन है या तो ये वाला रीजन है. x का वैल्यू लिखने का है तो x के वैल्यूज ये सब हो गए. ये सब हो गए x के वैल्यूज. तो आंसर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से 1 नहीं, -1 सॉरी एंड यूनियन 3 से इंफिनिटी. दैट इज करेक्ट. 3 से इंफिनिटी उसको मैथमेटिकली लिख दिया. -∞ से -1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी. दैट्स राइट कीर्ति. ओके, फोर्थ क्वेश्चन भी
सेम ही कर रहे वंस अगेन -1 और 3 ही मार्क करेंगे, बट इस बार कर ग्रेटर देन 0 नहीं पूछा है, बल्कि कर लेस देन 0 कब होगा पूछा है। तो आंसर क्या होगा? लेस देन 0 कब होगा? -1 से 3। -1 से 3, बस खत्म। दिस इज ओनली द आंसर। ओके, जल्दी लिख लेना ये 3 सम्स। मैं और थोड़ा सा अपग्रेड करूंगा इन सम्स को। जल्दी जल्दी लिख लो, किसी को डाउट है तो भी पूछ लो। कर बनाना है, आंसर लिखना है, कर बनाना है, आंसर लिखना है। दैट यू शुड डू इट वेरी फास्टली, विद इन 1 मिनट 1 क्वेश्चन। कर्व बनाना है, आंसर लिखने के लिए नीचे का पूछा है कि ऊपर का पूछा है तब देखेंगे। कर्व बनाने के लिए सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है, आंसर लिखने के लिए ये साइन से मतलब है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 से। कर्व बनाने के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स चाहिए। Now it doesn't matter if the factor is in the numerator or is in the denominator. It doesn't matter at all. फैक्टर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, doesn't matter. वेवी कर बनाने के लिए we have to write all those. All right, but first you'll have to unlock. हो गया तो बताओ लिख के। Done. सबका हो गया क्या? Should I go on, move on? How do you communicate in other classes? Do you raise your hand or something, or do you chat? Or you don't communicate only? सर ऐसे ही रहता है, सेम। तुम लोग वीडियो वगैरह चालू कर सकते हो क्या? Like not a compulsion. It's just next time onwards वीडियो ऑन रहेगा तो it will be more interactive. अच्छा ओके अर्चित, थोड़े लोग वीडियो ऑन करेंगे डेली तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसे लगेगा, तुम्हारी शक्ल देख के अच्छा लगता है। ओके, मैं 3 क्वेश्चंस लिखता हूं, तुम लोग खुद से करना। Just solve it here. Somebody is at my door. I'll just come in 2 minutes. अकमल क्या बोला, मुझे समझा नहीं। Yeah, that's right.
शायद पहले की बात कर रहे थे तब बोला था शायद तूने माइंड ट्रांसफर. Yeah, got it. Now, should I solve or should I wait? Anybody? Do you need time or do you need hint? That's right, Shivayu. देखो फिफ्थ वाला फर्क नहीं पड़ता न्यूमरेटर में फैक्टर हो या डिनोमिनेटर में फैक्टर हो, सीधा 1 और 4 मार्क करेंगे, 1 और 4 मार्क करेंगे और वेवी कर बना लेंगे. पूछा क्या है? When is it greater than 0? You can write down the answer now. अर्चित 3 कहां से आया? Is that a typing error? Yeah. That's right, तुषार. Greater than 0, बहुत सिंपल आंसर है. -∞, 1 यूनियन 4, इंफिनिटी. कर्व बनाओ, आंसर लिखो, यही अपना काम है. हाँ YOU की जगह जस्ट यू लिख सकता था अनिरुद्ध क्या? वो ऑटो करेक्ट में चला गया, सॉरी. हाँ, और तूने फोर्थ वाला है शायद ये आंसर, तूने फिफ्थ का लिख दिया. हाँ सॉरी फिफ्थ का, करेक्ट. अच्छा यू का ऑटो करेक्ट जूम में भी चलता है क्या? आई डिडंट नो. तुम लोग मोबाइल से करते हो कि लैपटॉप से? लैपटॉप से. लैपटॉप. हाँ लैपटॉप ही अच्छा है, थोड़ा स्क्रीन थोड़ा बड़ा रहेगा. ये लैपटॉप और डेस्कटॉप व्हाटएवर. Yes, Bhavika, you're right. Akmal, you're right. Yes, sixth वाले में 2 कहाँ चला गया? Did you forget about 2? Yes, Sharma, can you help me out? क्या मार्क करूं सिक्स्थ वाले में? यहाँ पे अभी 3 फैक्टर्स है, 1, 2 और 3. 3 मार्क करेंगे, 1, 2 और 3, 3 चीजें मार्क करेंगे. फिर कैन एनीबॉडी टेल मी इंफिनिटी पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये एक्सप्रेशन? बहुत इजी है. इंफिनिटी -1, इंफिनिटी -2, इंफिनिटी -3 सब पॉजिटिव ही है, कुछ सोचने की बात ही नहीं है. अनिरुद्ध -1 कहां से आया? ओ माइनस इंफिनिटी यू मीन? नो शिवायु, एक सेकंड. सिक्स्थ वाला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बहुत लोगों का. देखो, डिड यू मार्क 3 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3? सबसे पहले 1, 2, 3 तीनों मार्क करना पड़ेगा. फिर वेवी कर्व जो है यहां से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी पे पॉजिटिव रहेगा, फिर 3 पे कट होगा, 2 पे भी कट होगा, 1 पे भी कट होगा. दिस इज हाउ द कर्व इज. कर्व इज लाइक ए वेव. द वेव विल कट whenever there is a number marked. Acha, this is the wave. After drawing the wave, the question is, when is the wave greater than 0? When is the wave greater than 0? Can you point out? Greater than 0 मतलब इस लाइन के ऊपर कब रहेगा? इस मार्कर के ऊपर. तो इसके ऊपर कब रहेगा? आंसर देखो, ब्रह्मी सही है बट उल्टा लिख दिया पूरा. आंसर है 1 से 2. इस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा, 1 से 2. बस उतना ही है क्या? और कुछ नहीं? ये भी है 3 से इंफिनिटी. So the answer is 1 to 2 union 3 to infinity. That is right. Thank you, Ran Shivayu. You're all right. That's right. Bhavika 6th, हाँ 7th का correct है. Freya, I think you wrote an extra interval now. I think you got the answer. I hope. अनिरुद्ध 7th वाला गलत था. फ्रेया क्लियर हो गया क्या? 2 to 3 नहीं आएगा सिक्स्थ वाले में. That is right, Siddharth. That's right, Kirti. That's right, Advait. 7th वाले में भी
सोचने वाली बात ही नहीं है। वंस अगेन 1 2 3 ही मार्क करेंगे। वेवी कर्व सिर्फ इतने पार्ट के लिए बनता है, वेवी कर्व सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के लिए बनता है। वेवी कर्व बना लिया, वेवी कर्व बना लिया। 6th का वेवी कर्व 7th का वेवी कर्व सेम ही है। वेवी कर्व को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है। ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 सिर्फ आंसर लिखने के लिए मैटर करता है। अभी आंसर 7th का आंसर ये पूछ रहा है, या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हेन इज द कर्व लेस देन 0, कर्व जो है नीचे कब रहेगा। ये सब नीचे है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 के पूरे रीजन में नीचे है, माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर से नीचे यहाँ है 2 से 3, which many of you got it right. That's right, Vaidehi, Anirudh, Tushar, अर्चित हाँ या हर बार टाइपिंग एरर आता था। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। Should I move on to the next questions or should I wait for you to copy it down? Anybody? Okay guys, तो मैं थोड़े से bunch of questions लिखता हूँ, तुम लोग फटाफट solve करना। Should I erase this? Anybody who needs Yes, sir. time to copy it down? Okay. If you are feeling that the class is going very fast, do let me know. Or if it is going very slow, then also do let me know. Okay. So write down next 8th question है शायद। Okay, these are the next 4 questions on the board. एट एंड 9 सेम नहीं है अकमल, क्वेश्चन डिफरेंट है। देखो, एक में x-3 है और एक में x+3 है। Shuvayu, you are right. Akmal, your 8th one is right. Kirti, you are right. You can just write union as U, yeah, I'll understand. तुषार, कौन से सम का आंसर भेजा तूने? Ashley, you are right. Very nicely done. Yash, right. Advait, right. Kirti, I'm guessing you have sent me the 9th answer. Anu, 8th one, sir. I sent the 8th one. can you explain how? What did you mark? What are the points you marked in the 8th one? Yash correct, Archit correct. Yeah, Kirti, you only. कीर्ति, did you mark -1 plus, मतलब x equal to 1 आएगा पहले फैक्टर की वजह से, सेकेंड फैक्टर की वजह से -1 आएगा, -1 से 3 आएगा, फिर कर्व बनाया। Yes, sir.
कर्व ये आया। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रेटर देन 0 पूछा है, तो व्हाट आर यू राइटिंग द आंसर एज? Sorry, I misread the question. Yeah. Shivayu correct, Vaidehi correct, Anirudh correct. Yes, Akmal. Jaldi karo, greater than 0. Everybody should get the answer. Only if I can see your notes, I would be so happy if everybody was right. So the answer is -1, 1 union 3 to infinity. Greater than 0 है तो -1, 1 का रीजन आएगा, फिर 3 to infinity का रीजन आएगा. This would be the answer. एथ क्वेश्चन किसी को भी डाउट है तो पूछो. यश शर्मा, यू आर राइट. भाविका, यू आर राइट. यस अकमल. यस कीर्ति, x+3 है. 9th वाले में x+3 है. That's right, Vaidehi. Okay, I'll just pick up students who are not answering at all. Anuja, are you understanding? Anuja Parate, are you here? And Kesh Nidhi Kulkarni. Okay. I hope you are understanding everything. Advait, Anirudh, both of you are right. Okay. और कोई ने जो आंसर्स नहीं बता रहा है. रोहन एंड सोहम. सोहम है कि सोहम है, कैसे बुलाएंगे? ओके, व्हाट अबाउट 3 यश है तुम्हारे क्लास में. यश मिसाल, यश प्रधान, यश शर्मा. ओके, यश शर्मा तो मैं ध्यान दिया. यश मिसाल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Ashley, the answer is not complete for the 9th one. Ans the way correct. Okay, yes. चलो, सब जिंदा है यहाँ. ये बात सही किया यश शर्मा. कीर्ति करेक्ट. सिद्धार्थ, कुछ गड़बड़ हो गया यार. 9th वाले में ही गड़बड़ हो गया. ओ 9, 10, 11 तीनों गलत है. ना यहाँ पे नई चीज 9th वाले में थोड़ा सा अपग्रेड ये हो गया कि x² - 1 है. x² - 1 के रूट सिर्फ 1 है क्या? x² - 1 के रूट्स क्या होंगे? x = +or -1 है. x² - 1 के रूट से x = +or -1. So you are supposed to mark -1 also and +1 also, both of them. और x+3 का वैल्यू 0 कब होगा? -3 पे ऑब्वियसली. फिर उसके बाद पॉइंट्स मार्क कर लिए, फिर सोचे बिना वेविकर बना लिए. ग्रेटर देन 0 का आंसर लिखो अभी. ग्रेटर देन 0 का आंसर -∞ to -3 नहीं आएगा ना सोहम? ग्रेटर देन 0 कब होगा? देखो ध्यान से. 1 to infinity तो सही बता रहे हो. 1 to infinity में तो ग्रेटर देन 0 है.
फिर नेक्स्ट टाइम ग्रेटर देन 0 देखो यहाँ पे है -3 से -1, देखो थोड़ा एक्यूरेटली करो, -3 से -1 यूनियन 1 to infinity आएगा। दैट्स राइट रैन, वैदेही यू आर राइट। एक सेकंड पहले भी किसी ने भेजा, तुषार यू आर राइट, अकमल माइट बी राइट, आई जस्ट चेक द आंसर, इतना बड़ा मैंने रैंडमली क्रिएट किया क्वेश्चन। सोहम क्लियर हुआ क्या डाउट? दैट्स राइट निधि कुलकर्णी, भाविका यू आर राइट, हेत आई जस्ट चेक माइट बी राइट, हेत और अकमल दोनों का सेम ही आंसर आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबब्ली यू आर राइट। हेत 1,3 आया कि 2,3 आएगा, चेक कर हेत। हेत 11th वाले में 2,3 आता है शायद ब्रैकेट। हाँ यस, पहले मैं सोहम को ढूंढ रहा हूँ। सोहम तेरा वो समझा क्या मिस्टेक, -∞ to -3 नहीं है। Yes, Siddharth, 9th one is right. Should I give you more time to solve 10th and 11th? यूनियन ऑफ 3 सेट्स को यूनियन यूनियन करके लिख दे। यस यस, यू कैन राइट अद्वैत, दैट इज राइट अद्वैत। Okay, sir. You can write for any number of intervals. यश मिसाल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है 10th वाले में। कीर्ति और राइट। किसी का मैंने मैसेज पढ़ना भूल गया तो जस्ट रिमाइंड मी, ऑफ कोर्स दिल पे मत लो कि मैंने किसी के अगेंस्ट वो किया है, बिकॉज आई डोंट इवन नो योर। सिद्धार्थ यू आर राइट, रैन यू आर राइट। सही लग रहा है यश शर्मा, एक बार चेक करता हूँ मैं, आंसर तो सही लग रहा है। सही है अर्चित, अवंती यू आर आल्सो राइट, गुड वन। ओके, 9th वाला किसी को डाउट है क्या? एनीबडी? लास्ट टाइम आई एम आस्किंग फॉर द 9th क्वेश्चन। अनिरुद्ध नंबर ही रॉन्ग है। निधि थोड़ा सा छूट गया, यू फॉरगॉट 1 इंटरवल मोर। रोहन, once again numbers are only wrong. रोहन एंड अनिरुद्ध, numbers are wrong. What are you doing? x square -1 के लिए क्या मार्क किया तुम लोगों ने? -1 और +1। x square -4 के लिए क्या क्या मार्क किया? 4 एंड -4 थोड़ी मार्क करेंगे। दैट इज राइट रिया पाटिल। ओके सर, 2 होगा। यस, -2 और +2। चेक करो यार रोहन, अनिरुद्ध, इतना बेसिक मिस्टेक मत करो। -2 और +2 रहेगा, तो कितने भी पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेवी कर्व इज जस्ट लाइक अ वेव ओनली, जैसा उसका बिहेवियर है। फिर व्हेन इज इट ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 में -1,1 बताया बहुत लोगों ने, यूनियन 2,∞ भी बताया। थोड़े लोगों ने फर्स्ट इंटरवल छूट गया, और एक इंटरवल है, ये भी है -∞, -2। सो दिस इज द आंसर, -∞, -2 यूनियन -1,1 union 2,∞. This is the final answer for the 10th question. That's right, Ashley. रैन थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है, -2 नहीं आता। Vaidehi is correct, I guess. Vaidehi is right. Yeah, Vaidehi, you are right. I saw it again.
शुभम वंस अगेन नंबर्स आर रॉन्ग, -9 थोड़ी आएगा। नंबर्स को ऑफ कोर्स अपने ऑर्डर में ही लिखना है, ऐसा थोड़ी है कि 1 को पहले लिख दिया -1 को बाद में लिखा, ऐसा नहीं है। नंबर लाइन में तो नंबर्स उसी तरीके से रहेंगे, उतने एक्यूरेसी प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। तुम लोग जैसे बना रहे हो नंबर लाइन में जस्ट रैंडमली पॉइंट्स मार्क कर दो, वो स्केल एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें बस ये इंटरवल या आंसर लिखने से मतलब है, वेवी कर्व की ब्यूटी से कोई मतलब नहीं है। शुभम मिस्टेक है, हिरेश और भी रहेंगे। ओके, how many of you are still solving 10th question? No, Anirudh, the 10th question is on the board. -1, तो रहेगा ही, 2, infinity भी आएगा अनिरुद्ध, 2, infinity भी आएगा. So will -infinity, -2 also. Sir, you sent the 11th one, Bhavika. I just lost it out of so many messages. Can you just resend it? सिद्धार्थ seems right. सिद्धार्थ 1,3 नहीं 2,3 रहेगा शायद. Ran Matthew, you're right. Kirti, very nice, but the first one is -5, I think, first bracket में. I understand that it must be a typing error for sure. Bhavika, yes, you are right. मोक्ष थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. अच्छा वो सॉरी, -5, इन्फिनिटी नहीं, -infinity रहेगा मोक्ष. वो बहुत डिफरेंट है -infinity और +infinity. अंश दिवे, you are right यार. So is Archit. Very nice यार. Many of you are getting the 11th one correct. Okay. Since I got no reply for the 10th one except Anirudh. Yes, Moksha, I got that. Anirudh, did you understand that there is -infinity, -2 also in the 10th question? Yes, I'm figuring out that. Yes. Because greater than 0 में ये see 2, infinity भी रहेगा ना. You should not the figuring out or you figured out? No, I'm doing it. Asha. The solution is on the board. Yeah, I know. 10th question is anyone else doing 10th question? Okay, only Anirudh. Anirudh, let me know, then I'll move on to the 11th question once you're done with the 10th. If you're doing it in any other logic of your own, do let me know. I'll just construct your logic also. Yes, I got it now. Got it? Hiresh, no. Hiresh, you have missed few points. रिया, नंबर्स थोड़े एक्स्ट्रा आ गए. -1 कहाँ से आया? रिया पाटिल. ओके, अभी तक ऑब्वियस लगना चाहिए, बट स्टिल वेवी कर्व में राइट हैंड साइड हमेशा 0 ही होगा. वेवी कर्व में राइट हैंड साइड हमेशा 0 ही होगा. Now, okay, you got Rohan. Yeah, I got your answer. You continuously sent it. It seems perfect. यश मिसाल 25 नहीं आएगा. What are you doing? 5 आएगा कि 25 आएगा?
ओके, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, इसके रूट्स क्या है? इसके रूट से 1 और 2, इसके रूट से 1 और 2। पता नहीं थोड़े लोगों को -1 कहां से आया। इसके रूट से 1 और 2। एक्स स्क्वेयर माइनस 25, इसके रूट्स क्या है? मार्क किए क्या किसी ने? दैट्स राइट रैन। इसके रूट्स है -5 और +5। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट -5 इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड 5 इज ऑन द राइट साइड। एंड डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है? +-3 ऑब्वियसली। तो -3 किधर लाई करेगा? दैट इज फॉर यू टू फिगर इट आउट, कोई खास बात है नहीं, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। -3 इज समवेयर हियर एंड वेर इज 3 आल्सो इज सम ऑब्वियस, 2 और 5 के बीच में रहेगा 3। ओके, फिर अभी वेवी कर्व बना देंगे। सबसे पहले वेवी कर्व पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगा कि नेगेटिव साइड से स्टार्ट होगा, हमने ध्यान नहीं दे रहे ज्यादातर, बट बहुत बड़ा नंबर इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर बहुत ही बड़ा है, पॉजिटिव है। इन्फिनिटी स्क्वायर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। यस रिया पटेल एंड यश मिसाल, नाउ यू आर गेटिंग इट राइट। फिर वेवी कर्व बनाओ और आंसर लिखो, जल्दी करो। ऐसा वेवी कर्व, every root has to be touched, that is the only criteria, should be crossed, greater than 0। so greater than 0 का आंसर अभी लिखना है। there are so many intervals this time, greater than 0 लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेटर देन 0 के लिए ये है आंसर, लिखने के लिए लेफ्ट से लिख रहे हैं, बस कर्व बनाने के लिए राइट से बना रहे। -∞, -5 पहले, फिर -3 से 1, फिर 2 से 3, फिर 5 से इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर। देयर आर 4 इंटरवल्स इन सबका यूनियन, which very nice, at least 15 to 16 students have got it right. I'm so happy. I hope others also got it and didn't message me or something. देखो समझ में आ गया तो बहुत इजी लगेगा कर्व, समझ में नहीं आया तो जल्दी बताओ, समझ लो as soon as possible. Should we move on to the next question or should I wait? Okay guys, I'm assuming किसी और को कुछ डाउट नहीं है। Should I erase this? Anybody who needs time for you to copy it down? Was it an easy question or a tough question? 11th one. Okay. Okay, yes. Thank you, Ran Arjit. Yes. Okay. I'm erasing this part. देखो किसी को डाउट हो रहा है तो अभी पूछो यार, बिकॉज ऑफ कोर्स अगेन वी आर गोइंग टू अपग्रेड दिस लॉजिक नाउ फॉर टफर कर्व्स। किसी को डाउट है तो जरूर पूछ लो अभी। बेसिकली द आइडिया इज टू मार्क व्हेन ईच फैक्टर इज 0 एंड देन ड्रॉ द कर्व एंड रेस्पेक्टिवली राइट डाउन द आंसर। ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर अभी? 11। थैंक यू। 12।
Okay. These are the questions on the board. 6 questions. Okay. 12th question. Akmal, Kirti are right. Ran is also right. Archit gadbad ho gaya. Now this is a very, very common mistake. That's right, Anirudh. Very nice. Okay. No, Rohan. सबसे पहले रोहन, फर्स्ट चीज इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से क्या कॉमन आएगा? जाहिर सी बात है x ही कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x टाइम्स x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 आएगा, x टाइम्स x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0. यस, तो Yes, I got it, sir. यस, वेवी कर्व मार्क करते टाइम एक एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे. x minus 3 equal to 0 होगा when x is equals to 3, when x equals to 3. And another very, very common mistake people do is they just ignore x और x को divide कर देंगे. That is absolutely wrong thing to do. ये x मतलब basically x minus 0 है, x मतलब x minus 0 है, तो x into x minus 3 है, x मतलब x minus 0 मतलब x की वजह से एक 0 आएगा. This is how 0 comes into place. That's right, Ansh Dive. 0 आएगा, तो फिर इसके बाद फिर वेवी कर्व बना देंगे. That's right, Ran and Kirti. तो इसके बाद नॉर्मल वेवी कर्व ही बना देंगे. दिस इज द वेरी ऑब्वियस थिंग्स. 0 x मतलब x माइनस 0 है. अभी ग्रेटर देन 0 मतलब यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. माइनस इनफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 3 कॉमा इनफिनिटी. दिस विल बी द आंसर. किसी को डाउट है तो पूछो. 12th वाले में x मतलब x माइनस 0 है. दैट इज द ओनली थिंग. दैट्स राइट यश मिसाल, अर्चित मोदी. That's right, Kirti. Ran Matthew also right. यश शर्मा कैलकुलेशन मिस्टेक किया रूट्स में 13th वाले में. अद्वैत 13th वाले में मिस्टेक है. Anirudh 13th one is right. Bhavika is also correct. अर्चित रूट्स में एरर हो गया, माइनस नहीं आते प्लस आते रूट्स. दैट्स राइट कीर्ति 15th one, गुड वन. नो रैन 14th one गड़बड़ है. अंश दिव्य 13th का करेक्ट है. वैदेही ऑल्सो करेक्ट. 13th वाले में सबसे पहले राइट हैंड साइड -2 है. राइट हैंड साइड 0 ही होना चाहिए वेवी कर्व के लिए. तो इट इज एवरीबॉडीज कॉमन सेंस दैट राइट हैंड साइड का -2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है. राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए वेवी कर्व के लिए. तो राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कर सकते हो या फैक्टर्स ढूंढ सकते हो या रूट्स ढूंढ सकते हो. Yes, moving on. Vaidehi Pathak is right. Tushar is correct. Akmal also correct. Ran Matthew also correct. Yash Misal also correct.
अकमल 15th वाला गड़बड़ है. Archit, you are right, 13th one. Kirti, you are right. That's right, Anirudh. So it's Krish. बाकी का आंसर नहीं आ रहा आजकल. अभी सिद्धार्थ अनिरुद्ध कहाँ गया तू? Yashmishal, right. Vaidehi, correct. And few more are not answering. Atharva, Brahmi, Freya. I hope you are getting it right. Okay, if you are too lazy to type, that is fine. You can unmute and tell also. थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, डिस्कशन होता रहेगा तो अच्छा रहेगा. आगे और हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स में वी नीड ब्रेनस्टॉर्मिंग, सो वी नीड एवरीबॉडीज इनपुट. Okay, Krish is right, Yashmishal is right, Vaidehi is right, Bhavika is right. रोहन मिस्टेक हो गया 14th वाले में. ओके, 13th वन. सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 करना चाहिए. फिर इसके रूट से 1 और 2, इसके रूट से 1 और 2, और यू कैन फैक्टराइज इट एज x माइनस 1 x माइनस 2. फिर वेवी कर्व ग्रेटर देन 0 कब होगा? माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी. This will be the answer for the 13th question. अकमल 16th में भी साइन देख. रोहन 14th के देखना फैक्टर्स क्या आ रहे हैं. 14th के फैक्टर्स रूट्स देख. हाँ, अंश दिवे, यू आर राइट. वैदेही 9 नहीं आए. ओ वैदेही थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें. Yes, Heth, you can just leave it in fractions. No need to convert into decimals. Anirudh, good one, 15th. Kirti, you can just leave it in fractions. No need to convert into decimals, but I got your intention. Yash Misal, no, bilkul no. Tushar, you are right. Yes, Sharma is also right. Okay, guys, 13th one I am erasing. Anybody still doing the 13th question? Okay. फोर्टीन्थ वन. अच्छा, 14th वन, ये 3 का कुछ काम नहीं है. ये 3 पॉजिटिव रहेगा, बस वो एक ही उसका जरूरत है. ये 3 का भी 0 होगा क्या? 3 कैसे 0 होगा? 3 तो कुछ 0 होगा ही नहीं, तो 3 से कोई मतलब ही नहीं है. 3 से कोई मतलब ही नहीं है. अगर 3 बॉदर कर रहा है तो यू कैन डिवाइड 3, यू कैन डिवाइड विथ 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन डिवाइड विथ 3. अच्छा, और एक चीज है, कोई नंबर जस्ट सिंपल लॉजिक है. सी 5 is greater than 2. Everybody knows this. 5 is greater than 2. If I multiply say 10 on both sides, if I multiply 10 on both sides, I'll definitely get 50 is greater than 20, which is indeed correct. But what if I multiply minus 10 on both sides? What will happen? इस इक्वेशन में
if I multiply -10 on both sides, will the inequality remain the same? -10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -50 होगा, ये राइट साइड वाला -20 होगा. Will the inequality change or not change? -50 भी क्या -20 से ज्यादा है? No. No, -50 is less than -20. So I don't know if you have practiced so much in school or not, but if you multiply with a positive number, then the inequality will remain the same. And if you multiply or divide with a negative number, the inequality changes. ये सबको पता है क्या? नहीं पता है तो याद रख लो, पता होगा तो इट इज वेरी गुड. सी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ. और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है. जैसे कि 14th क्वेश्चन है तो ये 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग दोनों साइड. 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे the question will just become 1 upon x square minus 4x plus 3 is greater than 0 upon 3 which will be 0 only. तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है, 3 से डिवाइड किया. फिर इसके बाद वेवी कर बनाएंगे, डिनोमिनेटर के रूट से 1 और 3 हैपेंस टू बी दैट वापस से 3 मिल गया, और बाद में वेवी कर बनाएंगे. ग्रेटर देन 0 कब होगा? the answer will be -infinity, 1 union 3, infinity. This is the answer for the 14th one, which many of you got it right. ओके. नाउ 15th वाले में देखो थोड़ा सा गड़बड़ है यश मिसाल. 15th वाले में देखो न्यूमरेटर में क्या है? -7 है. न्यूमरेटर में -7 है. अगर मैं -7 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर - 10x + 9 -7 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? इनइक्वालिटी चेंज होगा. इनइक्वालिटी चेंज होगा. -7 को हटा रहे हो, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो. 0 अपॉन -7 तो 0 ही रहेगा, बट नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज होगा. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू शुड रिमेंबर. फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसके बाद वेवी कर्व में 1 और 9 मार्क करेंगे नॉर्मली. फिर नेचुरली विल ड्रॉ द वेवी कर्व, बट दिस टाइम नाउ द क्वेश्चन हैज चेंज टू लेस देन 0. ये लेस देन 0 कब होगा? ये लेस देन 0 होगा फॉर द इंटरवल 1,9. ये लेस देन 0 होगा फॉर द इंटरवल 1,9. द आंसर इज 1,9 फॉर द 15th क्वेश्चन, नॉट -infinity, 1 union 9, infinity. दिस माइनस साइन या प्लस साइन इज गोइंग टू अफेक्ट इन दिस मैनर. माइनस साइन से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा. Okay. Anybody who has doubt in the 15th question, do let me know right now. Inequality change करना नहीं change करना important है. Okay. One minute. Few people were messaging. I don't know till where did I solve it. Vaidehi 16th was right. Yash Sharma 16th वाला गलत है. Archit 14th वाला, now you understand that it is wrong. -infinity, 1 union 3 to infinity पे आएगा. रोहन आई डोंट नो किसका आंसर है, बट 0 किसी में नहीं आएगा. रोहन 0 कहाँ से आएगा? सॉरी सर, 1 था ना. हाँ. क्रिश यू आर राइट. ओके. यश मिसाल 15th वाला समझाना अभी. Yes, sir. अनिरुद्ध यश शर्मा यू आर राइट. हेत 17 यू आर राइट. 3 हेत मे बी कुछ एरर है कि ऑलवेज सेंड 3 टाइम्स. अद्वैत यू आर राइट. फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस में रहने दो, इरेशनल नंबर को भी इरेशनल नंबर ही रहने दो. नो प्रॉब्लम है, मतलब okay. Moving on to the 16th question.
थिंक फोकस चला गया. 16th क्वेश्चन वाज 3x square minus 7x minus 6 is less than 0. 3x square minus 7x minus 6 is less than 0. Did anybody factorize this? किसी का आया क्या factorization? That's right, Ansh Dive. Archit Modi, no. E minus 2 by 3. Thank you, Kirti. हाँ, 3x plus 2 into x minus 3 आएगा. That is your job to do. अगर factorization नहीं आ रहा तो you can just use formula method and solve it. फिर -2/3 और 3 ये मार्क करेंगे. -2/3 और 3. -2/3 because of the first factor and 3 because of the second factor. Less than 0 होगा तो ऐसे होगा. For less than 0 का आंसर, when is it less than 0? When is it less than 0? The answer will become -2/3, 3. The answer will become -2/3, 3. Less than 0 का जो भी आंसर रहेगा, less than 0 का जो भी आंसर रहेगा, नीचे वाले का. 16th one, which many of them got it, you can leave it as -2/3, 3. Krish, I think that was the 16th one, but yeah, I got the intention. देख रहे हैं अर्चित मोदी, कुछ एरर कैलकुलेशन में एरर हो गया फैक्टर्स निकालने में. -7x को -9x + 2x करके स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो. Seventeenth question. Next, x square plus x minus 1 is greater than 0. ओके अर्चित. हिरेश, बहुत ही वियर्ड आंसर है ये. -1 + 1 थोड़ी आएगा. x square plus x minus 1. You have to use formula method sort of. x square plus x minus 1 equal to 0. पहले इसके रूट्स ढूंढने के लिए for the roots इसको फॉर्मूले मेथड या वो -b plus minus √b square minus 4ac upon 2a ये वाला फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ेगा. x equals to -1 plus minus √b square minus 4ac. किसी का आया क्या? √5. थैंक यू. डिवाइडेड बाय 2. तो ये दोनों रूट्स आएंगे. तो अभी हम लोग वेविकर में ये दोनों मार्क करेंगे. -1 minus √5/2 -1 plus √5/2. इरेशनल नंबर भी मार्क कर सकते हैं, कोई बात नहीं है. -1 minus √5/2 एंड -1 plus √5/2. उसके बाद वेविकर नॉर्मल. व्हेन इज इट ग्रेटर देन 0? तो ग्रेटर देन 0 का फिर आंसर हो जाएगा -∞, -1 minus √5/2 union -1 plus √5/2, infinity. That will be the answer. इरेशनल नंबर आएगा तो भी कोई खास बात नहीं है. इट इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल नंबर ओनली. किसी को डाउट है क्या इस सब में? 17th क्वेश्चन. चलेगा. आई एम अज्यूमिंग कोई डाउट नहीं है. आज के लिए फिर क्लास खत्म करते हैं गाइस. 16th और 17th में किसी को डाउट है तो अभी पूछो. Okay, so we'll complete the class because we're out of time, but बहुत अच्छा सा फ्लो में चल रहे थे, मजा आ रहा था. नेक्स्ट क्लास में भी थोड़े और वेवी करके क्वेश्चंस करने हैं मुझे, तो और थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे. एंड नेक्स्ट क्लास आज हमने स्टार्ट किया, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा वेविकर खत्म होते हैं. I'll give you a bunch of homework, but आज के लिए once again there will be no homework, and today will be the last class with no homework. Next class onwards homework रहेगा. I hope you are not missing the homework. Okay. कुछ और पूछना है क्या? Anybody? Anything? किसी को डाउट है क्या इस समय 17th वाले में?
Okay, guys, we'll wind up the class for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. sir. Bye. Thank you, sir. Okay, bye, guys. Thank you, sir. Doubts होंगे तो you can ask me on Discord or WhatsApp, whatever is convenient to you. Yes. Bye bye. Thank you for attending. नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के आना ये आज का लेक्चर बस. वेविकर भी जस्ट लाइक फैक्टराइजेशन किसी ने इन्वेंट नहीं किया अकमल. मतलब वेविकर भी लाइक इट्स अ जनरल नॉलेज थिंग. ऑल मैथ्स स्टूडेंट्स realized it after a certain time. Bye Shivayu, bye Akmal. Yes Shivayu, okay. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. So there was a power cut in my area. So could you please explain the 17th problem? 17th सम में ना irrational roots है. irrational roots है तो फॉर्मूला मेथड से पहले रूट्स निकाला. -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है. Yes, sir. बात कर दिया मैंने. हाँ, फिर दोनों रूट्स मिल गए ना. -1 प्लस रूट 5/2 -1 माइनस रूट 5/2 उन दोनों को मार्क कर दिया. नॉर्मल वेविकर बना लिया. ग्रेटर देन 0 के लिए ये और ये, तो दोनों इंटरवल लिख दिए. ओके सर. बस रूट में आएगा अंतर तो और कुछ नहीं. ओके बाय सिद्धार्थ, बाय रिया, बाय भाविका, अनिरुद्ध.